Hello students, let us move to find the indefinite integrals by substitution method. Suppose this is a function and we have to find the integration of this function. So here we see a function is given and its derivative is given. So we have to substitute in the place of fx as t. This is called your substitution method. So take t is equal to fx. Now find out dt by dx, that is the derivative of fx, and this to be converted as dx is equal to dt by f dash x. So this is the substitution of fx by t. So this can be written as f dash x. In the place of fx you take t, and in the place of dx this is dt by f dash x. So this should be cancelled and the formula will be t square by 2 plus c. So this I is equal to this I square, that is the function of here f dash x fx. The integration will be your fx square divided by 2 plus c. So this is your formula number 1. So f dash x fx dx integration is your fx square by 2 plus c. So this is the formula number 1. Now similarly, if n is here, this is the second one. Now number 2. So f dash x fx whole to the power n. So you will move in the same way. So here this is your to the power t to the power n. Then this will be your n plus 1 divided by n plus 1. So this square will be n plus 1 divided by n plus 1. So this is the second formula, that is integration of f dash x fx whole to the power n dx is your this is fx and n plus 1 power n plus 1 divided by n plus 1. So this will be the second formula for the integration by substitution method. Now third one is, if the same function is given as, this is number 3, f dash x divided by fx dx. So same substitution will be taken, that is this is t is equal to fx, then dx is equal to dt by f dash x. So this I is equal to f dash x divided by t dt by f dash x. So this will be cancelled. So here the integration of this one is log mod t plus c. One thing you note, if you put log in the integration, so you have to put in t this t in the modulus form. So the third formula will be what? Integration of f dash x divided by fx dx is equal to log mod fx plus c. This is the formula number 3. Now you just write down all the formula. This is third formula. Now if you replace this function here to the power n, one thing you note it, n should not be equal to 1. Then this is your t to the power n. Hence the integration will be this is t minus n plus 1 divided by minus n plus 1 plus c. So if this is your n, then the integration of this will be your what? fx 1 minus n divided by 1 minus n plus c. So this is your formula number 4. So by taking these all formulas, we can able to find out the integration of the function by substitution method. So these are all the formulas.
Now let us take some examples by taking these formulas of substitution method. Now question number 1. Suppose you have to find the integration of tan x. Now you take here, so this is your sin x by cos x dx. Now what is the derivative of cos x? The derivative of cos x is your minus sin x. So by taking this formula, f dash x by fx dx, here the integration of this tan x would be your minus log mod cos x plus c, or integration of tan x dx is log sec x plus c. So this is the integration of the function tan x. Similarly, number 2, if you find the integration of cot x dx, then this is your cot means what? Cos x by sin x dx. Now the derivative of sin x is cos x. So by taking this formula, this is your log mod f x plus c. Now by taking this formula, the integration of cot x dx will be log sin x plus c. So this is the integration of cos x. Similarly, if you find the integration of the function, that is sec x dx. So dear students, by taking the integration of sec x, we have to substitute in the place of sec x, that is we have to take t is equal to sec x plus tan x. इसको आप याद रखेंगे. So what is dt by dx? So this is your sec x tan x plus this is sec square x. So this is your sec x sec x plus tan x. So what is dx? So dx is equal to dt by sec x into this is your t. Hence integration of sec x, here this one is your sec x, you replace this dx by this one, that is dt by sec x into t. So sec x will be cancelled. So this is log t plus c. So what is the integration of sec x dx? This is your log sec x plus tan x plus c, because the value of tan t is your sec x plus tan x. So remember this one, you have to remember the formula. As a formula, this integration of sec x dx is log sec x into tan x. Now let us take, similarly you can find the integration of cosec x dx by taking t is equal to cosec x plus cot x. You find the integration of this cosec x by yourself. Now let us take some examples, more examples. Suppose you are given the integration of x 2x plus 1, this is x square plus x plus 5 dx. Now you have to find the integration of this one. Suppose the question is given in the examination. तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं. अगर डेरिवेटिव है तो ठीक है. मान लीजिए कि उसको बाद में चर्चा करेंगे. मान लीजिए ये फंक्शन हुआ तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2x plus 1 है यहाँ, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा इसका आंसर लिखेगा log x square plus x plus 5 plus c.
बिकॉज ये एफ एक्स हुआ और ये एफ डैश एक्स हुआ। मान लीजिए यही क्वेश्चन एक्स प्लस 5 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 दे दिया और आपको कहा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो इसमें परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ पर x प्लस 5 है, 2x प्लस 1 लाने के लिए आपको क्या करना होगा? 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। तो दिस इज योर 1/2 2x प्लस 10। 10 की जगह आपको 2 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इसको अलग कर दिए। इसके बाद ये जो है, जो यहाँ 10 आ रहा था उसको 8 करके आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 dx होगा। अब इसमें चूंकि ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो आप इसको अलग अलग करके इसका तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। इसके बाद 8/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 7 आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन से मेथड से बनाते हैं जो अगले पार्ट्स में आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। dx रूट एक्स प्लस एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या करोगे? इसमें है होगा क्या कि dx आप रूट एक्स कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स dx। नाउ इसको हम इस तरह से क्यों ब्रेक किए? क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस रूट एक्स लोगे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स होगा। मतलब क्या कि dt/dx जो होगा वो 1/2 रूट एक्स होगा। सो dx कितना हो जाएगा? अगर आप t लेते हैं 1 प्लस रूट एक्स को तो ये जो होगा dt/dx, तो यहाँ dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 dt इंटू रूट एक्स। इस रूट एक्स को मिलने के लिए आपका ये रूट एक्स यहाँ पर आना जरूरी था। तो इसका मतलब हो गया कि इस dx के जगह आप लिखेंगे 2 रूट एक्स dx divided by, now this is what? This is t. So t into root x, ये कैंसिल हो गया। सॉरी, यहाँ पर dx के जगह dt होना चाहिए, dt होना चाहिए। So this is your what? 2 log t plus c. So integration of x plus root x should be 2 log 1 plus रूट एक्स प्लस सी। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम लोग को इसमें मिल सकता है, टू फाइंड आउट कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। तो इसको भी आप इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर t जो लेना होगा रूट एक्स लेना होगा। इसको बना लेंगे आप। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। जब भी आप इंटीग्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो फंक्शन है वो तो है ही इसके अंदर, उसका डेरिवेटिव पार्ट वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप t ले लेंगे log x प्लस एक्स, सो dt/ds कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1। सो दिस इज 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो ये इस फंक्शन में आ रहा है fx dx। इसमें कितना आ रहा था? fx स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो यहाँ पर ये fx हो गया और यहाँ पर ये उसका डेरिवेटिव का पार्ट हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा log x प्लस एक्स का होल स्क्वायर
divided by 2 plus c. This is the answer of this question. कभी कभी ऐसा भी होता है, क्वेश्चन यही है और यहाँ पर लिख दिया 5, तो वहां पर भी सेम ही चीज काम करेगा, क्योंकि ये 5 आ गया तो यहाँ पर होगा 5 + 1 और नीचे भी होगा 5 + 1, मतलब क्या, दिस इज योर 6 divided by 6. तो दिस इज द क्वेश्चंस which are we find from substitution method. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करना चाहेंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन दे देगा sin x बाय sin x + a dx, ऐसा क्वेश्चन आ गया. तो बच्चे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा. जैसे इसको आप कन्वर्ट करेंगे sin x + a minus a divided by sin x + a, किसी भी तरह से ये हटना चाहिए या इसका डेरिवेटिव पार्ट ऊपर में आना चाहिए. दिस इज योर, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए. So this is your sin x + a cos a minus cos x + a sin a divided by sin x + a dx. So this is your cos a dx minus cos x + a sin x + a sin a dx. Now this is constant, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन निकल रहा है वो x के फॉर्म में है. सो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो x cos a, ये भी कांस्टेंट है तो sin a बाहर आ गया. अब यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव है, sin का डेरिवेटिव cos, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, log sin x + a plus c. So this is the value of the इंटीग्रेशन. देखिए बड़ी आसानी से निकलता है. केवल क्वेश्चन अगर आए तो उसको बढ़िया से देखिए, उसका नज़र मिलाइए, फिर दिमाग लगाइए, क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं. जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेना चाहेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन, dx 1 + e⁻x. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जब भी बनाओगे, ये क्वेश्चन रहे चाहे ये क्वेश्चन रहे 1 + a⁻x, इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनेगा. तो इसको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को e⁻⁻x 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 e⁻x dx, e⁻⁻x से ऊपर और नीचे हम इसको याद रखिए कैसे बना रहे हैं. सो दिस इज योर e⁻⁻x, दिस इज 1 + e⁻⁻x dx. तो इसका जो डेरिवेटिव है 1 + e⁻⁻x का, दिस इज माइनस ऑफ दिस 1. तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया. लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आप ऊपर और नीचे मिला लीजिए. सो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ, दिस इज योर माइनस लॉग 1 + e⁻⁻x plus c. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ये 1/x होगा तो ये होगा e⁻x 1 + e⁻x plus c. इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं. उसी तरह से ऐसा मान लीजिए यहाँ पर एक के जगह हम 2 लिख दिए और इसका इंटीग्रेशन आ गया एग्जामिनेशन में, तो इसमें भी आपको यही काम करना होगा. 2⁻⁻x ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा 2⁻⁻x. तो इसके साथ जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा. तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका डेरिवेटिव पार्ट यहाँ पर है, माने t = 2⁻⁻x + 1 लेंगे
तो dt बाई जो dx आएगा, दिस इज योर, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, माइनस एक्स लॉग 2 into derivative of this is minus 1. So what is the derivative? So what is dx now? So dx जो हो गया, this is your dt by minus 2 to the power minus x log 2. So इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 to the power minus x, इसके जगह आप t लिए हुए हो तो माइनस dt by 2 to the power minus x log 2, ये कैंसिल हो गया. सो माइनस 1 बाई log 2 एज ए कॉमन बाहर आ गया, log t प्लस c. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन नाउ, दिस इज माइनस 1 बाई log 2 log t के जगह क्या लिखे हुए हैं आप, ये, तो इसको 1 बाई करोगे तो हो जाएगा 2 to the power x plus 1 by 2 to the power x plus c. अगर ये माइनस को यहाँ शिफ्ट करना चाहेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा dx 1 plus 2 to the power x, ये माइनस को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 बाई log 2 log, ये ऊपर डिनोमिनेटर में एक्सचेंज हो जाएगा और प्लस c. So this is the integration of this function. So dear students, आगे चल के और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे. एक क्वेश्चन और हम लेना चाहेंगे इसमें, जो बहुत जल्दी से कैसे, जैसे कभी कभी होता है कि साइन इनवर्स tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इनवर्स इसको मान लीजिए साइन है, ये क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसमें कभी कभी करता है कि यहाँ 2 लिख देता है, 3 लिख देता है, 4 लिख देता है. तो ये हम नहीं देखना है, आपको देखना क्या है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर है. तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है. सो व्हाट इज dt by dx? सो dt by dx हो गया 1 by 1 plus x square. so what is dx? so this is dt 1 plus x square. So what is I now? I is your sin t 1 plus x square dt 1 plus x square, ये कैंसिल हो गया. Now what is the integration of sin x? So integration of sin t is minus cos t plus c. So minus cos tan inverse x plus c. So प्यारे बच्चों, this is one part of the substitution method. अगले पार्ट में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका अगला पार्ट लेंगे. और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर पार्ट को आप माइन्यूटली देखिए, तभी जाके आपको टॉपिक्स के ऊपर कमांड आएगा. और समझने का कोशिश कीजिए और उसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि हर क्वेश्चन आपको आसान लगे. और किताब को लेकर सब्स्टिट्यूशन मेथड या इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा एक्सरसाइज किसी भी किताब का बना सकते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.